students, today I introduce my topic acids, bases and salts. Acids. Substances can be classified as acids, bases, indicators. Acids, these are the substances that are sour in taste. They are corrosive in nature and they turns blue litmus into red. Acids are of two types, mineral acids and organic acids. Mineral acids, these are the acids that are obtained from minerals. Example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Organic acids. Organic acids are those acids which are obtained from plants and animals, like malic acid, citric acid, oxalic acid, etc. Now, bases can be divided into two parts, alkalis and non-alkalis. Alkalis means alkalis are the bases that consist hydroxyl group. Hydroxyl means OH group. Hydroxyl means OH group. Bases are the alkalis which consist of hydroxyl group are called alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis, because you can see here ammonia is base. Ammonia is base, but it does not consist of hydroxyl group. It is not an alkali. All alkalis are bases. All alkalis turns red litmus into blue, but all bases do not consist of hydroxyl group, so they are not alkalis. Indicators are the substances that are used to check whether a substance acidic or basic. Indicator is a substance that changes its color in acidic or basic solution. Indicators can be divided into two parts, natural indicators and synthetic indicators. Natural indicators are those indicators which are given to us by plants and animals, like red cabbage juice, turmeric. These are natural indicators. Synthetic indicators are those indicators which are made in factories and in labs from chemicals. These are methyl orange, phenolphthalein. Methyl orange and phenolphthalein are synthetic indicators. Now students, look here, ये एक चार्ट गिवन है आपको. इंडिकेटर, उसका ओरिजिनल कलर, एसिड में क्या कलर देगा और बेस में क्या कलर देगा. रेड लिटमस. रेड लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी रेड होता है, एसिड में भी रेड, लेकिन बेस. रेड लिटमस बेस, बी से बेस, बी से ब्लू. ब्लू में बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू कलर. रेड लिटमस बेस में कैसा कलर शो करता है, ब्लू. रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू इन बेस. रेड लिटमस बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू. और ब्लू लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो ब्लू ही रहता है, एसिड में क्या हो जाता है, रेड, और बेस में ब्लू रहता है. ब्लू लिटमस कहाँ पे अपना कलर चेंज करेगा, एसिड्स में. ब्लू लिटमस एसिड्स में क्या हो जाता है, रेड. ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड इन एसिड्स. टर्मरिक न्यूट्रल और एसिड्स में क्या रहेगी, येलो, सेम रहेगी, नो चेंज, लेकिन बेस में क्या हो जाती है, रेड. टर्मरिक हल्दी एसिड में अपना कलर चेंज करेगी. एसिड में कलर चेंज नहीं करेगी. टर्मरिक अपना कलर चेंज करेगी बेसिस में. कैसा कलर कर देगी, रेड. टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिस. बेसिस में टर्मरिक अपना कलर चेंज करती है. phenolphthalein colorless. Phenolphthalein is colorless in neutral solution and in acids, and in bases it turns into pink color. phenolphthalein जो है कलरलेस है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी, एसिड्स में भी, बट बेसिस में पिंक कलर. phenolphthalein turns into pink color in bases. मिथाइल ऑरेंज, एज इट्स नेम, मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज और एसिड्स में येलो और बेस में रेड. मिथाइल ऑरेंज एसिड्स में रेड और बेस में येलो. टर्मरिक से अपोजिट. टर्मरिक क्या थी, बेस में रेड. ये किस में रेड है, एसिड में. टर्मरिक एसिड में क्या थी, येलो. ये येलो किस में है, मिथाइल ऑरेंज बेस में. मिथाइल ऑरेंज कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज in neutral solution is orange and it turns into yellow color in acids, in bases, and it turns into yellow in bases. bases में yellow
और एसिड्स में रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है? ऑरेंज है, ठीक है। बेसिस में टर्मरिक कैसा कलर दे रही थी? रेड, ये कैसा देगा? येलो। एसिड्स में क्या कलर था टर्मरिक का? येलो, ये देगा रेड। चाइना रेड कैबेज जूस का कलर है पर्पल, रेड कैबेज जूस रेड या पर्पल, एसिड में रेड, बेस में ग्रीन। चाइना रोज लाइट पिंक कलर, एसिड में डार्क पिंक मीन्स मजेंटा और बेसिस में ग्रीन। चाइना रोज लाइट पिंक कलर, एसिड्स में डार्क पिंक, मजेंटा और बेसिस में ग्रीन कलर। हाइड्रेंजिया ब्लू कलर, न्यूट्रल में भी, एसिड में भी और बेस में कैसा कलर देगा? पिंक। हाइड्रेंजिया बेस में कलर देगा पिंक। चाइना रोज एसिड में डार्क पिंक, मजेंटा और बेसिस में देगा ग्रीन। बेसिस में कैसा देगा? ग्रीन। और रेड कैबेज जूस बेसिस में ग्रीन, एसिड में रेड, बेस में ग्रीन। चाइना रोज बेस में ग्रीन, एसिड में डार्क रेड। नाउ लिटमस क्या है? लिटमस इज इंडिकेटर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स, लाइकन से मिलता है। लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फंगस एंड एल्गा, एंड इट्स बिलोंग टू थैलोफाइटा। थैलोफाइटा is the division in which very simple plants without roots, stem and leaves. लिटमस किससे मिलता है? लाइकन से। लाइकन्स में क्या? फंगस और एल्गी। और कौन सा डिवीजन है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन सिंपल प्लांट्स विदाउट रूट, स्टेम एंड लीव्स। ना स्टेम ना रूट है इन प्लांट्स के, लीव्स है। लिटमस इसे दो फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, पेपर के फॉर्म में भी और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी। It can be used in both form, in form of paper and in form of solution. Olfactory indicators. Olfactory indicators are the indicators which changes their odor, which changes their smell, which changes their characteristic smell, characteristic odor in acid or base. Olfactory indicator are useful for visually challenged person. जो देख नहीं सकते उनके लिए olfactory indicator बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये स्मेल, ये कलर चेंज नहीं करते, ये स्मेल ही अपनी खो देते हैं। They lost their smell. Olfactory indicators lost their characteristic smell in acid or bases. Olfactory indicator acid और bases में अपनी smell खो देते हैं, कोई smell नहीं देते। Students, you can see here some of the weak acids are given. Organic acids. Now how can we learn them? Look here, there is a good trick. Grapes, GT road, G grapes, T tartaric, grapes tartaric acid. Tamarind, GT tamarind, grapes and tamarind consist of tartaric acid. Apple mela, apple कैसा है? मेला, apple malic acid, apple malic acid. कर्ड लाल भी देखिए कभी, कर्ड अपने रेडिश होते हैं, कर्ड लाल, कर्ड लैक्टिक, और कर्ड किससे बनते हैं? सोर मिल्क, खट्टे दूध से। कर्ड सोर मिल्क लैक्टिक एसिड। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट लाइक लेमन, orange, lemon and orange consist of citric acid. Citrus fruit खट्टे फ्रूट क्या कंसिस्ट करते हैं? citric acid. विनेगर एसिटिक एसिड, विनेगर अच्छा एसिटिक एसिड. टोमेटो कैसा होता है? राउंड, अप्रोक्सीमेट राउंड ही होता है. टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड. स्पिनच गुआवा also consist of oxalic acid. स्पिनच गुआवा ऑक्सैलिक एसिड. आंट और बी स्टिंग और नेटल प्लांट की जो लीव्स हैं उनमें क्या होता है? कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड. कैट सी से कैट. कोल्ड ड्रिंक कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड. आंवला कंसिस्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड. टी कंसिस्ट ऑफ टैनिक एसिड. कोल्ड ड्रिंक कार्बोनिक एसिड, आंवला एस्कॉर्बिक एसिड, टी टैनिक एसिड. Now students look here, mineral acids, these are the acids obtained from minerals and we can divide it into two parts, concentrated acid and dilute acid. Concentrated acid means it is the concentrated acids, these are the solutions in which maximum amount of acidic gas is present as compared to solvent water. यहाँ वाटर का अमाउंट कम, एसिड का अमाउंट ज़्यादा. एंड डाइल्यूट मीन्स डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम करना कैसे? बाय
बाय एडिशन ऑफ सोल्यूट इन सोलवेंट। वाटर के अंदर जब कंसनट्रेटेड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, उसको स्टिर करते हैं मिक्सचर को, तो दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स सोल्यूट के कंसंट्रेशन कम करना। जब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सोल्यूट कम, तो वो कैसा होगा सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब एसिड से उनको डायरेक्टली यूज करना बहुत ही डेंजरस है, और एसिड के भी वेस्टेज होते, तो वी कैन डाइल्यूट एसिड्स। हम नहीं करते हैं, लैब अटेंडेंट्स करते हैं इस काम को। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर में कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज एसिड्स का ऐड किया जाता है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कैसे भी, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल लाइक जिंक, जिंक पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव। जिंक combine with sulfate, it will form zinc sulfate and hydrogen gas. Zinc sulfate and hydrogen gas. Hydrogen gas. Students, in chapter 1 you have studied that hydrogen gas is explosive gas that burns rapidly when it comes in contact of fire. फायर के कॉन्टेक्ट में आते ये क्या है, बर्न हो गया, इट क्रिएट्स पॉप साउंड। ये कैसा साउंड पैदा करते हैं, पॉप साउंड। हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, टेस्ट ट्यूब को जो एडजस्ट किया, इस तरह से होल्ड किया हुआ इसमें। यह एक डिलीवरी ट्यूब, पहले टेस्ट ट्यूब के माउथ में क्या लगा दी, कोर्क, कोर्क में से पास करा दी डिलीवरी ट्यूब। एक टब के अंदर है डिलीवरी ट्यूब का एंड, और इस डिलीवरी ट्यूब में है सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, जब यहाँ रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या एसिड, और एसिड में क्या ऐड किया हुआ है, सम ग्रैन्युल्स ऑफ जिंक, जिंक का कुछ अमाउंट, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा, और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से डिलीवरी ट्यूब, ये क्या डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब से पास होता है, डिलीवरी ट्यूब से पास होते हुए सोप सॉल्यूशन। यहाँ बबल्स क्रिएट हो गए, बबल्स किसके हैं, दिस बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल bring near to the bubble, then explosive sound, pop sound will produce. That pop sound, that explosive sound shows presence of hydrogen gas, and that hydrogen gas produced due to combination of sulfuric acid with zinc. Okay students, curd and soda, these are the substances. We should not keep them in copper vessels, copper or brass vessels, because curd and soda substances, these are the substances that consist of weak acids, and weak acids react with brass and copper vessel. Brass and copper are highly reactive. Weak acids react with these metal or alloy, and they will convert into toxic poisonous substances, and that can cause food poisoning, and that will dangerous to us. Reaction of metal with base. When metal combine with base, it will form salt and water, and that reaction of metal with base, metal with base. Sodium hydroxide is base. Sodium hydroxide is base when it combines with metal. Metal hydroxide. No, it will not form metal hydroxide. Students, zinc plus sodium hydroxide, Na2Zn O2, sodium zincate. ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। बेस विद मेटल, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। सभी एसिड्स मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, सभी बेसिस के साथ मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जिंक और एल्यूमिनियम में से किसी एक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हीट इन्हें चाहिए, हीट जब सोल्यूशन को मिलेगी तो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा, साथ में प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस Na2Zn O2। फॉर्मूला चेक कर लें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 नेगेटिव और 2 एटम है तो 2 2 जा 4 नेगेटिव, सोडियम की 1 पॉजिटिव, 2 एटम है 2 2 जा 4, सोडियम की वैलेंसी क्या है +1 और 2 एटम्स है तो +2 हो गए, और जिंक की +2 2 और 2 टोटल 4, तो कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। सोडियम 2 है, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ओके, इट इज बैलेंस्ड। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, वैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज +3, सोडियम +1 3 and 1 +4, oxygen -2, and when 2 atoms of oxygen 2 into -2 2 2 ja 4 minus, it is neutral,
प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स देखो कैसे चेक करते हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या है +1, जिंक की क्या है +2, +1 और ये 2 एटम है तो +1 × 2 क्या हो गया +2, +2 और +2 टोटल +4 और ऑक्सीजन की -2 और 2 एटम है तो -2 × 2 -4 तो कंपाउंड क्या है न्यूट्रल। प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ बैलेंस देखो सोडियम के +1, एल्यूमिनियम +3 और +1 +4 और ऑक्सीजन के -2 और 2 एटम है तो 2 × -2 -4 तो ये न्यूट्रल है। सभी मेटल्स के साथ बेसिस की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पर भी बबल्स क्रिएट होंगे और बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग कैंडल आओगे तो एक्सप्लोसिव साउंड जो है गैस बर्न होकर क्रिएट करेगी। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है सोडियम क्लोराइड और यहाँ से क्या बन सकता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन अभी भी यहाँ बच गए हाइड्रोजन H2O। स्टूडेंट्स यहाँ सोडियम की वैलेंसी 2, ये सोडियम की वैलेंसी 2 नहीं है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 सोडियम के पैरों में, सोडियम की वैलेंसी +1 कार्बोनेट के पैरों में, Na2 है तो 2Na और क्लोरीन क्या है 1, क्लोरीन क्या है 1 2 हो गए, राइट में 2 लेफ्ट में 2 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन राइट में 3 यहाँ भी 3। ओके स्टूडेंट्स इट इज बैलेंस्ड। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का मेटल कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहाँ CO2 बन जाएगा और एक ऑक्सीजन और H मिलकर वाटर बनाएगा। सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट व्हेन combines with acid they will form carbon dioxide water and salt. Sodium hydrogen carbonate when combined with hydrochloric acid it will form sodium chloride, carbon dioxide and water. When acid and base combine together they will form salt and water. Such type of reaction is called neutralization reaction. Acid and base combine together to form salt and water. NaCl and H2O neutralization reaction. बेस है उसमें एसिड ऐड होगा तो क्या होगा न्यूट्रलाइज। हमारी बॉडी में एसिड बनता है बहुत तो क्या होता है हम एंटासिड्स लेते हैं उनमें क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वो क्या करते हैं रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट। मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। Metal oxide means when oxygen combine with metal, metal oxides are formed. Metal oxides are formed when metal combine with oxygen. Non-metal oxide means non-metal oxides means when non-metal combine with oxygen. When non-metal combine with oxygen, it will form non-metallic oxide. Oxygen metal के साथ मिलता है तो metallic oxide और oxygen non-metal से मिलता है non-metallic oxide. When metallic oxides are dissolved in water, metallic oxides turns red litmus into blue, so they are basic in nature. And non-metallic oxides when they are dissolved in water they turns blue litmus into red, so they are acidic in nature. Non-metallic oxide वाटर में डिसॉल्व होने पर ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, रेड मीन्स एसिड, एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे और ये रेड को ब्लू करेंगे, रेड लिटमस को तो बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। और ये ऐसे बहुत से रिएक्शन है लाइक सोडियम combine with oxygen it will form sodium oxide or sulfur is a non-metal it combine with oxygen to form sulfur dioxide is sulfur trioxide. When magnesium combine with oxygen it will form magnesium hydroxide. Okay students, and magnesium oxide MgO, and when carbon combine with oxygen it will form carbon dioxide or carbon monoxide. It depends on amount of air. When air is sufficient carbon dioxide will be formed, and when oxygen is not sufficient then carbon monoxide will form.